See, unit cells. Unit cells are the smallest block or repeating unit of a crystal lattice of a solid. किसी भी सॉलिड के क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा जिससे हम इंटायर क्रिस्टल लैटिस को जनरेट कर सकते हैं उसे हम लोग यूनिट सेल्स कहते हैं. So unit cells are the smallest repeating units by which we can generate the entire crystal lattice. Right? If we consider a wall made up of bricks, अगर हम एक दीवार को माने जो दीवार एक ब्रिक से मिलकर बनी हुई है तो जो इसमें ये जो ब्रिक्स आपको दिख रही है ये हम इसको यूनिट सेल्स कंसिडर कर सकते हैं. इस एक ब्रिक से हम क्या कर सकते हैं अगर इसको 3 डायमेंशन में हम अगर इसके 3 डायमेंशन में रिपीट करें तो हम पूरे वॉल्स को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं. सो ब्रिक में बी कंसिडर्ड एज यूनिट सेल्स. यूनिट सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स. So here these are the parameters. There are 6 parameters. They are ases. So ases are here A, B, and C. See, there are 3 ases A, B, and C. See in the diagram. This is A, this is B, and this one is C. Or in between these ases, there are angles. These are known as angles. So they are alpha, beta, and gamma as angles. So each unit cell or the cubical unit cell that is characterized by 6 parameters, 3 as lengths and 3 as angles. Now see at these point, this is the lattice point or the lattice site. It represents the constant particles. The constant particles may be atoms, they may be molecules, right? They may be ions. ठीक है, किस तरह का सॉलिड है वो. अगर वो कोवलेंट सॉलिड है तो इन पॉइंट्स पे, इन लैटिस साइट्स पे, इन पॉइंट्स पे क्या होगा, एटम्स की पोजीशन होगी. अगर वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे और अगर आयनिक सॉलिड है तो इन पोजीशंस पे हमारे आयंस होंगे. So these are lattice points or the lattice sites. Now see here in the cubical unit cells, see some features. See here there are 8 corners. देखिए यहाँ पे 8 corners आपको दिख रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? Face centers अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर हमें 6 faces दिख रहे हैं. 1, 2, 3, 4 और एक पीछे दिख रहा है, एक आगे दिख रहा है. So there are 6 face centers. Then body center of the cube center. So there is only one body center of the cube center here. See, देखिए cube के center पे, body center पे. This is one. Total face diagonals अगर हम देखें यहाँ पे देखिए, this one is the face diagonal. तो अगर हम प्रत्येक faces पे 2 face diagonals हमें दिख रहा है. So in total there are 6 faces. So there is 12 face diagonals in a cubical unit cell. तो body diagonals देखिए ये हमारा एक body diagonal है यहाँ से यहाँ तक this one. तो अगर हम देखेंगे तो total body diagonals कितने होंगे हमारे? This becomes 4. और लेंथ ऑफ ईच एज अगर हम एजेस की लेंथ को देखें तो ये हम ए मान रहे हैं. दिस ए, दिस इज आल्सो ए, राइट. सो दिस वे द लेंथ ऑफ ईच एज लेंथ इज इक्वल टू ए. और लेंथ ऑफ फेस डायगोनल सी हियर अगर हम फेस डायगोनल्स के लेंथ को देखेंगे तो अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो दिस इज एज लेंथ ए, दिस इज ए, सो दिस बिकम्स रूट 2a, दिस इज रूट 2a, राइट. नाउ लेंथ ऑफ ईच बॉडी डायगोनल अगर बॉडी डायगोनल के लेंथ को देखें, देखिए ये वाला डिस्टेंस, ये अगर हम देखेंगे इस लेंथ को, ये हम अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, देन 1, 2, 3 दिस वन, यहाँ से एयर दिख रहा है a एंड दिस इज, ये हमें दिख रहा है क्या, दिस इज रूट 2a, ये कितना हो जाएगा हमारा, दिस इज रूट 3a. सो लेंथ ऑफ ईच बॉडी डायगोनल इज रूट 3a, राइट. नाउ सी द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स. So basically in a cubical unit cells there are 3 types. First one is simple or the primitive unit cells. Second one is the body centered cubic unit cell, and the third one is the face centered cubic unit cells. Say the first one, the simple or the primitive unit cell. Say in this case, see the location of particles or the arrangement of particles. अगर इस तरह के unit cells में हम particles का arrangement को देखेंगे, so we see that there are 8 particles at the 8 corners. यहाँ पे हमें प्रत्येक corners पे particles दिखेंगे. So this is the arrangement. So there are 8 particles at the 8 corners. So this is the simple or the primitive unit cells, right? Now see the number of particles per unit cells, that is Z. It is represented by Z. अगर हम देखेंगे कि प्रत्येक पार्टिकल का एक यूनिट सेल्स के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, तो उसके लिए हम देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसको ध्यान रखिएगा. See these are lattice points and the contribution in one unit cell. See the particles at the corners have the contribution of 1/8. Particles at the face center have the contribution of half in one unit cell. Particle at the body center of the cube center has a contribution of 1, and particle at the edge center has a contribution of 1/4. So here जितने भी particles हमें corners पे दिखते हैं उनका contribution 1/8 होगा. देखिए हम करते क्या है यहाँ पे, जैसे ये unit cells हैं तो this unit cells इसके surrounding हमें 8 unit cells दिखेंगे, right? तो अगर हम देखेंगे कि ये जो corner वाला particle है
ये 8 यूनिट सेल्स के टच में है, तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट सेल्स में इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा. So each corner particle they are in touch with the 6 unit cells. So contribution is 1 unit cell is 1/8. Right? Similarly, अगर कोई फेस के सेंटर पे पार्टिकल है, मान लीजिए यहाँ पे फेस के सेंटर पे हमने रखा है, so at the face center each particle is in touch with 2 faces. ये 2 faces के टच में होगा, एक यूनिट सेल्स में इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? हाफ. So here the contribution is half. Similarly, when the particle is present at the body center, तो body center पे उसका contribution निकलेगा, this complete contribution in 1 unit cell, तो यहाँ पे contribution कितना आएगा? It is 1. Now, if the particle is present at the H center, अगर H के सेंटर पे हमने यहाँ पे रखा है, देखिए, तो हमें क्या दिख रहा है कि the particles at edges they are in touch with 4 unit cells. ये 4 unit cells के टच में होंगे, right? इसका मतलब क्या है? एक यूनिट सेल्स में इसका contribution कितना होगा? 1/4. So the particles at H centers they have the contribution of 1/4 in 1 unit cells. So ये रूल्स आप याद रखेंगे. इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल्स निकालेंगे. Now see here, number of particles per unit cell in simple unit cells. See here, so there are 8 particles at the corners, and the contribution is 1/8. So this comes out to be 1, right? Now see the S length. So this distance, यहाँ से यहाँ तक का distance हमें दिख रहा है क्या? This is A. So S length here is A, and हमें दिख रहा है क्या? These are the corner particle, right? आपको मालूम होना चाहिए इसमें इस तरह के यूनिट सेल्स में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ईच पार्टिकल दे आर इन टच विद ईच अदर. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम इसको स्फीयर मानेंगे पार्टिकल को, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दिख रहा है क्या? R. This is also R. So the A becomes equal to 2R, right? याद रखिएगा, जितने भी पार्टिकल्स हैं कॉर्नर्स वाले, वो सब एक दूसरे को टच में होते हैं. ये भी वाले पार्टिकल्स सब टच में होंगे एक दूसरे को, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें जो दिख रहा है वो 2R के बराबर दिख रहा है. ठीक है, हम लोग पार्टिकल्स को एक स्फीयर कंसीडर करते हैं और इसका रेडियस हम लोग R मान रहे हैं, यहाँ से R. तो ये डिस्टेंस हमें जो दिख रहा है, this is R. So this becomes equal to 2R. So S length in case of simple or the primitive unit cell, this is equal to 2R. तो यहाँ से हम रेडियस में निकाल लें, तो रेडियस becomes S length upon 2 A/2. रेडियस आ जाएगा A/2. Now distance of the nearest particles. अगर हम nearest particles को देखें, right? तो nearest particles पहले हम देख लें कि nearest particles कितने डिस्टेंस पे और कितने नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल्स होंगे, इसको देख लेते हैं. तो देखिए होगा क्या यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं जो पार्टिकल्स, ये जो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक रेफरेंस पार्टिकल ले लिया, मान दिस वन इज आवर रेफरेंस पार्टिकल, ये ठीक. अब इसका जो नियरेस्ट पार्टिकल्स कौन सा है? ये वाला पार्टिकल है. कितने डिस्टेंस पे है? ए डिस्टेंस पे, ठीक है. तो दिस इज द नियरेस्ट पार्टिकल्स. नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स विच वन? जैसे ये हमारा जो है दिस वन नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल है दिस इज नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स. यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा अभी कितना आया? तो √2a. दिस इज इक्वल टू फेस डायमीटर. नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स अगर हम देखेंगे इसको, दिस इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स. इसका डिस्टेंस हम देखेंगे तो कितना आ रहा है? दिस इज द बॉडी डायगोनल. ये कितना आ रहा था हमारा? √3a. इस तरीके से हम निकाल सकते हैं क्या डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल्स, जिसको हम लोग नेबरिंग पार्टिकल्स भी कहते हैं. तो दिस इज a, ये a डिस्टेंस पे हमें दिख रहा है. Distance between next nearest particles, this is √2a, this one, and distance between the next to next nearest particles, this is √3a, this one. Yeah, right. Now see the number of nearest particles, जिसको हम लोग coordination numbers भी कहते हैं. So the coordination number is the number of neighboring particles. जितने भी neighboring particles होंगे उसको हम लोग कहेंगे क्या? coordination number. Now see in this case, see here, a distance पे कितने particles होंगे? ये देखिए a distance पे एक particle ये दिख रहा है, a distance पे एक particle ये दिखेगा, a distance पे एक particle ये दिखेगा. तो हमें दिख रहा है क्या? This 1, 2, ये पार्टिकल यहाँ पे है 2, दिस इज 3, राइट. और जस्ट इसके साइड में जो यूनिट सेल्स होगा उसके टच में होगा पार्टिकल, इसके जो साइड में यूनिट सेल्स होगा उसके कॉर्नर वाले पार्टिकल के टच में होगा, और यहाँ पे हमें जो दिख रहा है इसके जस्ट अपोजिट पे जो कॉर्नर वाला पार्टिकल होगा उसके टच में होगा. सो ये वी सी दिस इज 4, 5 and 6. सो सी हियर दिस पार्टिकल इज इन टच विद 6 पार्टिकल्स. ये 6 पार्टिकल्स के टच में है, तो वी कैन से दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. यानी ए डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल्स होंगे? 6 पार्टिकल्स होंगे. ये देखिए. अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स, यानी ये वाला डिस्टेंस जो है हमारा, ये वाला डिस्टेंस कितनी दूरी पे है? जो √2a डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल्स होंगे? ये टोटल आ जाएंगे कितने हमारे? 12 पार्टिकल्स होंगे. देखिए यहाँ पे प्रत्येक फेस डायगोनल पे ये यहाँ पे दिख रहा है. इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो फेस डायगोनल सी कितने फेस डायगोनल टच कर रहा है? ये टोटल 3 फेसेस पे टच कर रहा है. एक फेस, दूसरा फेस जस्ट इसके पीछे, और यहाँ पे ये वाला फेस. तो ये इस तरीके से दिख रहा है क्या? ये 12 टोटल हमारे क्या हो जाएंगे? पार्टिकल्स के टच में. क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दिखता है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन, ये देखिएगा क्या हमारा दिस वन इज हाफ, ठीक. तो ये हमारा आ जाएगा क्या? 8 और 3 फेसेस पे ये टच में है, तो 8 into 3, दिस बिकम्स 8 into 3. एंड वहां पे जो हमें दिख रहा था क्या, ये जो डिस्टेंस हमें दिख रहा था यहाँ वाले पार्टिकल्स, वो हाफ उसका कॉन्ट्रीब्यूशन मान के चलते हैं हम अपने कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल हम सिर्फ एक यूनिट सेल्स को कंसिडर करते हैं.
तो इस तरीके से याद आ रहा क्या हमारा 12 बार, राइट। और नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स, यानी ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल्स होंगे, √3 डिस्टेंस पे, इसको हम लोग देखेंगे तो ये आएगा हमारा क्या 8 पार्टिकल्स आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन 1 मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके मानते हैं कि इसकी तरफ कोई भी यूनिट सेल नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारा, अगर इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट पे ये वाला डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो देखेंगे 8, और टोटल हमारा कितना आ रहा था यहाँ पे 8 इंटू या में 1, क्योंकि एक ही बॉडी डायगोनल में दिख रहा है यहाँ पे ये वाला 8 इंटू 1 इंटू 1, ये हमारा आ जाएगा 8, राइट। सो नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल्स इज 6, नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स इज 12, एंड नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स इज 8। तो इसको आप आसानी से इस तरीके से याद कर लेंगे, 6, 12, 8, ये याद रखिएगा। सो ये हमें पूरा दिख रहा है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंपल और द प्रिमिटिव यूनिट सेल, राइट। Next type of unit cell is body center cubic unit cell. Say, in the body center cubic unit cells, the arrangement of particles is there are 8 particles at the corners. सारे corners पे particles होंगे, ये सारे corners पे particles होंगे, right? And there is 1 particle at the body center. एक body center पे particle. So this is the arrangement. There are 8 particles at the corners and 1 at the body center, right? Now see the number of particles per unit cell. आपको पता है, this is the at the corners that contribution is 1/8. And at the body center, the contribution is 1. So see here, so there are 8 particles at the corners, the contribution is 1/8, and there is 1 particle at the body center, and here the contribution is 1, so it is 2. So number of particles of the unit cells in BCC is 2. Now see the as length, this distance. See here. So in the body center cubic unit cells, see here, each particle, see, let us consider this particle. This corner particle, and 1 particle at the body center, right? So this distance, this R, this is 2R, and this one is R, right? Now see, let us consider this triangle A, B, and C. A, B, and C. Let this be D. So in triangle ABC, this distance is A, this is A, so this becomes √2A. Now consider this triangle ADC. This distance is √2A. This distance is A. So this becomes, यहाँ से यहाँ तक का distance क्या आ रहा है? This is √3A. Right? This is the length of the body diagonal. Now √3A. This becomes equal to 4R. Right? So this A comes out to be 4R upon √3. So this is 4R upon √3. From here we can calculate the radius of the particle. This is, radius becomes √3/4A. So this is √3A/4, right? Now distance between the nearest particles. Say the nearest particles. Say, okay, consider this reference particle. यहाँ पे हम एक रेफरेंस पार्टिकल्स को ले लेते हैं, ये वाला पार्टिकल मान लीजिए, इसके रेस्पेक्ट हम देखते हैं कि इसके नियरेस्ट पार्टिकल्स कौन सा। अब अगर यहाँ से हमने एक बॉडी डायग्राम को ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ से तक का पूरा डिस्टेंस हमें क्या दिखेगा, √3A, और बीच में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बॉडी के डायगोनल पे यहाँ पे यानी कि सेंटर पे, यानी यहाँ से का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस था √3A, ये कितना हो जाएगा, दिस इज √3A/2, इसका जस्ट आधा। तो ये जो पार्टिकल हमें दिख रहा है, दिस वन इज द नेक्स्ट, इट इज द नियरेस्ट पार्टिकल्स, ये नियरेस्ट पार्टिकल्स हमें दिख रहा है, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है, ये इसका नेबरिंग पार्टिकल है, और इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, √3A/2, ठीक है। तो इस डिस्टेंस पे हमें √3A/2 डिस्टेंस पे ये दिख रहा है, इसका नेबरिंग पार्टिकल दिख रहा है, नियरेस्ट पार्टिकल दिख रहा है। डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स, तो नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल कौन सा होगा, ये वाला होगा, दिस वन इज द नियरेस्ट, दिस वन इज नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल, और इसका डिस्टेंस हमें कितना दिख रहा है, A, राइट। और नेक्स्ट वन, ये वाला जो पार्टिकल हमें दिख रहा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स, राइट, और ये कितने डिस्टेंस हमें दिख रहा है, √2A, ये फेज डायगोनल है, तो दिस डिस्टेंस इज √2A। So distance between nearest particles is √3A/2, just half of the body diagonal. Distance between next nearest particles is A, this one, and distance between next to next nearest particle is √2A, this one, A. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो nearest particle है वो कितने हैं, means number of nearest particles, this is known as coordination number. ये हमें दिख रहा है 8, इसका मतलब क्या हुआ, each particle at the corner they are in touch with 8 different particles प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर्स। ये जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है, इसके चारों तरफ जो 8 यूनिट सेल्स हैं, उनके जो बॉडी सेंटर में पार्टिकल्स हैं, उनके टच में,
ठीक है। और जो बॉडी के सेंटर वाला पार्टिकल है वो अपने जो कॉर्नर्स वाले हैं, अपने यूनिट सेल्स पे जो 8 कॉर्नर्स पार्टिकल्स हैं उनके टच में होते हैं। सो इन दिस केस वी सी दैट द ईच पार्टिकल इज इन टच विद 8 पार्टिकल्स, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। ठीक है। बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल अपने कॉर्नर वाले पार्टिकल्स के टच में होगा, और जो कॉर्नर वाला पार्टिकल्स है वो 8 जो बॉडी सेंटर वाले पार्टिकल्स हैं उनके टच में। देखिए यहाँ पे आप समझ में ये जो 8 नियरेस्ट पार्टिकल्स, ये अगर हमारा एक रेफरेंस है जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है, तो बॉडी सेंटर में क्या दिख रहा है, दिस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये जो इसके चारों तरफ 8 यूनिट सेल्स हैं उनके बॉडी सेंटर में जो पार्टिकल्स हैं उनके टच में है। और प्लस अगर हम देखेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स कौन सा दिख रहा है, जो a डिस्टेंस पे है, ये सारे कितने डिस्टेंस पे थे, √3a/2 डिस्टेंस पे थे। और ये जो कितने हमारे, ये a डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस हमें कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो द नेक्स्ट नियरेस्ट हमें दिख रहा है क्या, नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स इज इक्वल टू 6, राइट। यानी ये इस डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल्स दिखेंगे, 6 दिखेंगे। और ये वाला जो हमारा पार्टिकल है नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स, यहाँ पे कितने दिखेंगे, यहाँ पे हमें दिखेंगे क्या, 12 पार्टिकल्स दिखेंगे। ठीक है, तो इसकी मदद से आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट टाइप इज फेस सेंटर cubic unit cells. Now say in this case the arrangement is there are 8 particles at the corners, 8 corners पे particles हैं, right, and there are 6 particles at the face centers. प्रत्येक faces के ऊपर particles हैं और प्रत्येक corners के ऊपर particles हैं। देखिए ये face के centers पे particles में दिख रहा है, पीछे और एक आगे। So there are 8 particles at the corners and there are 6 particles at the face centers, right? So this is the arrangement in FCC unit cells. Now see the number of particles per unit cells. Now see here, at the corners the contribution is 1/8 and at the faces the contribution is half. So calculate it, 8 into 1/8. 8 particles at the corners, contribution is 1/8. There are 6 particles at the face centers and the contribution is half. So this is 4, right? So number of particles for the per unit cells, that the value of Z in FCC is 4. S length, देखिए S length कितना आएगा यहाँ पे, S length निकालते हैं तो S length में हमें दिख रहा है क्या, अगर हम यहाँ पे एक पार्टिकल कॉर्नर पे लेते हैं और एक पार्टिकल हम यहाँ पे फेस के सेंटर पे लेते हैं, तो देखिए किस तरीके से ये आ रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे एक कॉर्नर का पार्टिकल ले लिया, सेकेंड कॉर्नर पार्टिकल, और एक फेस के सेंटर पे पार्टिकल ले लिया, राइट। मान लेते हैं ये ट्रायंगल, दिस इज A B and this is C. This distance is, this is R, this one is 2R and this is R. This one is A, this is A. So this becomes, यहाँ पे ये जो फेस डायगोनल आपको दिख रहा है कितना हो जाएगा, this is √2a, right? So √2a कितना आ रहा है, this is √2a, this is equal to 4R. So here the A comes out to be 2√2R. See here, S length becomes √2R. ठीक है। From here we can calculate the radius of particle. It comes out to be A/2√2. तो रेडियस कितना हो जाएगा, A/2√2. Now see the distance between nearest particles. अब हम देखिए ये इसका जो इसके रेफरेंस में ये नहीं हमारा नियरेस्ट पार्टिकल्स है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी √2a, तो √2a का हाफ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, A/√2। तो A/√2 डिस्टेंस पे हमें दिख रहा है क्या, ये पार्टिकल। तो A/√2 डिस्टेंस पे ये दिखेगा इस तरीके से, इस फेस पे भी हमें क्या दिखेगा, A/√2 डिस्टेंस पे। इसके जस्ट पीछे वाला फेस है उसके भी क्या दिखेगा, A/√2 डिस्टेंस पे हमें दिखेगा पार्टिकल। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉर्नर पर हमें क्या दिखेगा, A/√2 A/√2 A/√2। यहाँ पे भी कॉर्नर वाला पार्टिकल A/√2 के डिस्टेंस पे हमें पार्टिकल्स दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या दिख रहा है, ये वाला कॉर्नर वाला पार्टिकल इसके क्या है, 3 पार्टिकल्स के टच में है जो A/√2 डिस्टेंस पे है, ये भी 3 में है, ये भी 3। इस तरीके से हम देखेंगे क्या टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल्स 12 आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन FCC यूनिट सेल्स। अब हम देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन द नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें कितना दिखा था, ये वाला पार्टिकल जो था दिस A/√2। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, ये नेक्स्ट था हमारा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कौन जाएगा, ये दिस वन, ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितने पे आएगा, दिस A। तो नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स A। और तीसरा में क्या दिख रहा है, अगला कौन सा दिख रहा है, ये वाला पार्टिकल है, दिस इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स, राइट। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स ये कितने डिस्टेंस पे है, √2a। तो दिस इज √2a। ठीक है, सो दिस इज distance between nearest particles, this is distance between next nearest particles and this is distance between the next to next nearest particles. ये पूरा इंफॉर्मेशन अपने पास रखिए, इन सब पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। नाउ सी द नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल्स। अभी हम लोगों ने देखा A/√2 डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल्स होंगे, 12, राइट। नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स यानी A डिस्टेंस पे कितने होंगे, तो A डिस्टेंस पे अभी आपने देखा ये A डिस्टेंस पे कितने होंगे, टोटल हो जाएंगे हमारे पास कितने, 6। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, ये हमारे 12 हो जाएंगे, यानी ये जो आपके फेस डायगोनल्स जितने होंगे, तो फेस डायगोनल्स टोटल कितने आ जाएंगे, यानी कि 12 हो जाएंगे। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, देखिए ये हमारा कॉर्नर वाला पार्टिकल है,
इससे जो हमें दिख रहा है a/√2 डिस्टेंस पे हमें कितने पार्टिकल्स दिख रहे हैं, 12 पार्टिकल्स दिख रहे हैं। इसको आप देख लीजिए, इसके चारों तरफ जो a/√2 डिस्टेंस पे हमें 12 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, और जो a डिस्टेंस पे दिख रहे हैं हमें कितने दिख रहे हैं, वो ये a डिस्टेंस है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, a डिस्टेंस पे हमें 6 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, राइट। So this is the face-centered unit cell. Next, one more type of unit cell is end-centered unit cell. एक और टाइप होता है जिसको हम लोग end-centered unit cells कहते हैं, ठीक है। और इसमें हमें दिखता क्या है, the arrangement is there are 8 particles at the corners and there are 2 particles at any 2 opposite face centers. यहाँ पे इस तरह के unit cells में 8 particles corners के ऊपर होते हैं, ठीक है, और किसी 2 अपोजिट फेस सेंटर्स के ऊपर पार्टिकल्स, जैसे ये फेस सेंटर है और ये फेस है, तो किसी 2 अपोजिट फेस सेंटर्स पार्टिकल्स होंगे और प्रत्येक कॉर्नर्स पे होंगे, तो ये हमारा इन सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स।